tradition started here from terrible violence. Yeah, this man, he proved idea that people have to believe in Jesus with blood and violence and soldiers. Yeah, and one of nicknames of this man was Vladimir Krasnosolnышко, Vladimir Red Sun, because this man used lots of fire during his career to prove his ideas. Yeah, so it was even rumors that he killed almost all adults just to grow teenagers in new new religion. Yeah, before 1917, before October Revolution, Communist Revolution, most of the territory of Ukraine used to be part of a Russian Empire. Some parts of Ukraine at that time they belonged to Poland or to Hungary, but most of the territory was a Russian Empire. After 1917, it was not like, you know, communism and Soviet Union on whole territory immediately. Yeah, it was about 4 years of ununderstandable events when all armies fight with each other. And at that time, army which fought for independence of Ukraine lost this fight, and that's how Kiev became and Ukraine became occupied by communists. Yeah, so actually, I think that a lot of Ukrainians in central Ukraine were not totally not happy with ideas of communism. And that was the reason why when Ukraine became to be part of Soviet Union, it was like Ukrainian Soviet Social Republic. But Soviets, they decided to locate capital of Ukrainian Republic not in Kiev, but in Kharkiv from very beginning of Soviet Union, which is very strange. I mean, everything is fine with this city, Kharkiv. It's just too small to be capital, and it's too young, and it's not so centrally located. It's closer to border with Russia than to central Ukraine, basically. So the reason why, probably because they were expecting massive protests in central Ukraine. Unfortunately, at 1932, 1933, it was another terrible situation here, terrible event. It was starvation caused by Soviet government, artificial starvation. We call it Holodomor. And it happened that at 1932, Stalin closed borders of Ukraine. And before that, actually, Ukraine as a Soviet Republic had a nickname in Soviet Union, feeder of whole Soviet Union. Means republic, so rich, so it's possible to produce food for all the rest of Soviet Union. Endless fields and endless gardens, and we are unbelievably successful in and very good for from agricultural point of view. Yeah. So at 1932 they closed the borders, put army on borders, and they visited each small private backyard to take everything eatable. They took everything: bread, calves, pigs, everything. They they used stones to melt bread. Yeah, so they police was breaking these stones in every family. Yeah, so they did it on purpose, and they left it closed for almost 2 years. Now documents prove that it's more than 10 million of Ukrainians died during this almost 2 years. Yeah, so it was terrible starvation. How Ukraine been changed in a really good way. Because this park actually was created as a result of a massive protest of local people. Yeah, first plan was to put here building with apartments for people from Ministry of Foreign Affairs. And local people start protest because definitely it's historical place, and we need more place for chilling and just recreation zones, and infrastructure is not ready for another skyscraper. And as a result, this small park was built on donations of local people. I know for Europeans it's not a big surprise when people get together in union, change something for good. But believe me, normally people in post-Soviet countries, they just stuck and frozen in Soviet mentality, yeah? And they kind of lazy and suspicious, and they don't want to join any unions. Yeah, so in some way, this place is a great example how Ukraine was unfrozen after Soviet Union, when people just realized that they can get together and they can change everything. सेरामिक टाइल से आर्ट बनाई हुई है सब जगह इस पार्क में. छोटा है बट ब्यूटीफुल पार्क है.
it's not possible to feed your family with this money. I pay for my apartment about 900 euros per month, yeah, so for just for renting, yeah. Definitely, the absolute majority of them involved in corruption. They cover like illegal like drug dealing or whatever. Yeah, the same doctors in our hospitals, they normally have salary the same 200-300 euros per month. And that's why they have normally illegal income. Yeah, clever doctors, they just work part-time for private clinics. Yeah, some of them just taking bribes. Yeah, and here it's not always easy actually to call black from white sometime. Yeah, because for example, when I visit doctor with one of my daughters, and I know that this guy spent 6 or 7 years in university, 2 years of internship, and no one knows how many years just with real patients to get this real experience, because I will not visit just random doctor. Yeah, so and after that he got salary like 200 euros per month. Well, I have to be grateful, and at the end of my visit I will leave my donation, which will be a bribe, criminal situation. Yeah, but in this case my donation and my bribe will cover holes not covered by government, because otherwise this doctor just next morning he will be selling souvenirs to you guys, and I will have no doctor at all. Yeah. But in like let's say in the private companies, of course salary is not like that. Like for example, let's say when I used to work in marketing research, like when I quit my company, my salary was about 2,000 euros per month. Yeah, which is normal salary. You can survive with this money with your family here, and that's normal salary. Yeah. This is not peace. तो ऐसे पार्क में बहुत सारे बना रखे हैं इन्होंने. दिस इज़ द अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसके बारे में गाइड बता रहे थे. ये फॉरेन अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनके ऑफिशियल्स के लिए बनाई गई थी, जिसके लिए एरिया इंक्रोच कर लिया था, और फिर प्रोटेस्ट के बाद ये एक छोटा सा पार्क लोगों को मिल गया. कोदल एरिया में ऐसे बहुत सारी स्ट्रीट आर्ट जगह जगह पे बिल्डिंग्स पे, तो हमारे गाइड हमें वो दिखा रहे हैं. बहुत ज़्यादा कूल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर. कुछ 1900s, अर्ली 1900s की हैं, और कुछ लेट 1900s यानी कि 50s, 60s, 90s, और इवन पीछे चले जाए तो 1910, 1920 की भी बिल्डिंग है. जैसे ये ब्रिक बिल्डिंग सारी पुरानी बिल्डिंग्स है. ये एक और मुराल है जो कि बेसिकली दिखा रहा है इस लड़की को जो जिम्नास्ट है, जिम्नास्टिक्स करते हुए. ये यूएसएसआर के लिए गोल्ड ला चुकी है पहले, वो बता रहे थे. मुराल ऐसे और भी जो वो दिखा रहे हैं पूरे सिटी में 2 पर्पसेस के लिए बनाए गए. एक तो जो पुरानी बिल्डिंग है उनके फसाद को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, और एक आर्ट इन्फ्यूज़ करने के लिए सिटी में. प्लस दूसरा रीज़न है कि लोगों का जो एंग्स्ट है रशिया और जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं कंट्री के अंदर, उनको हाईलाइट करने के लिए. तो ये जैसे ये मुराल था, इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया था वहाँ पे बर्निंग टायर्स बने हुए थे, अगर आपने नोटिस किया हो. तो वो ये दिखा रहे थे कि वो जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसके बारे में बात चल रही थी, जहाँ पे पुलिस ने स्टूडेंट्स को पे फायरिंग वगैरह की थी, तो स्टूडेंट्स ने बेसिकली टायर्स वगैरह बर्न किए थे ताकि वो स्मोक क्रिएट करें और बच सकें उनसे, पुलिस वालों से. तो सिमिलरली ये जो था, ये जो जिम्नास्ट थी वो एक्चुअली ततारियन थी. ततार एक रीजन है रशिया में. ततार इज़ अ डिफरेंट कम्युनिटी, आई वुड से. दे आर मुस्लिम्स विद इन द रशियन एम्पायर. तो रशिया ने बेसिकली उसकी आइडेंटिटी को ततारियन ना बता करके रशियन बताया, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन इट. एंड ये क्रीमिया से ही आती हैं, ये जो जिनका ये मुराल था. तो अगेन टू हाईलाइट हर एज अ क्रिमियन ततारियन एंड नॉट रशियन, ये यहाँ क्रीव में उनके लिए उन्होंने वो पूरा मुराल बनाया है. She is a famous Ukrainian poet, Lesia Ukrainka, Lesia Ukrainian girl. So at the time when it was more profitable to write poetry in Russian language, she created her beautiful poetry in beautiful Ukrainian language. So people really pay respect to her because she's like a big part of Ukrainian culture in some way. Yeah?
Now we will go this way, and you know this area is full of secret backyards and secret places. Yeah, so we are just actually just a few hundred meters to Golden Gate, to our finishing point. Just before that, I was wondering to show you one backyard which might be interesting for you. Yeah, like local place. Yeah, let's go. Famous probably first of all because of this bird, because this bird here for more than 25 years actually of the same place. Wow. And it's this huge raven. It was founded by hunter at winter time with a broken wing, and that's how it happened to be here, because hunter helped it to recover, but it was too late. Is this Lada? Lada? Lada, yeah, it's another name, but Lada is more official. People call it Zhiguli. And it's Zhiguli #1, first model. तो इस गाड़ी को लाडा बोलते हैं. लाडा इज़ द नेम ऑफ द कंपनी और उसका ये मॉडल है जिगुली 1. ये बहुत ही पॉपुलर कार थी सोवियत यूनियन के टाइम पे. ये लाडा इज़ लाइक दी मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया. तो सबसे सस्ती और टिकाऊ गाड़ियाँ बनाने के लिए लाडा जाना जाता है. पूरे सोवियत यूनियन में इसी गाड़ियाँ चलती थी. बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे. यूनियन में हर चीज़ की स्कार्सिटी हुआ करती थी, इंक्लूडिंग कार्स. तो जैसे इंडिया में भी चलता था, आपको सालों सालों वेट करनी पड़ती थी कार के लिए. इनफैक्ट कार के लिए क्या, इवन समथिंग एज सिंपल एज ब्रेड या चीज़ खरीदने के लिए आपको कई बार 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, क्योंकि करेंसी से चीज़ें नहीं बाय होती थी. आपके पास कूपन्स होते थे, एंड जो गवर्नमेंट के स्टोर्स से उनसे आप कूपन से चीज़ें खरीद सकते थे. ज़्यादातर चीज़ों की शॉर्टेज होती थी. आपको पता लगता था आप ब्रेड खरीदने गए हैं, बट जब लाइन में आपका नंबर आया तो ब्रेड तो ख़त्म ही हो चुकी है, एंड आप यू एंड अप बाइंग चीज़. अब चीज़ है बट ब्रेड नहीं है. तो पैसे भी हो तो पैसे की कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज आप चीज़ें बाय नहीं कर सकते थे उस पैसे से, बिकॉज चीज़ें होती ही नहीं थी. Not. In fact, like this one is not old, it's new as well. It's renovation, because ancient Golden Gate was ruined during Second World War, during Mongolian invasion. And still, why it might be interesting for you, because now you just walked from very central square of old city of Kiev to the main entrance of this city. Because in old times Kiev was surrounded by walls, yeah, and backdoor gate was located very close to our meeting point, down this way, yeah. So you can evaluate how smaller was Kiev in old times. एक बहुत ही ट्रेडिशनल से यूक्रेनियन रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ यूक्रेनियन खाना ट्राई करने के लिए. ये मेन्यू है, एंड सभी तरह का यूक्रेनियन खाना. ज़्यादातर आइटम्स आर लाइक मोर लाइक in the range of 70 to 120 hryvnia per item. तो देखते हैं क्या मिलता है, क्या रहता है. एंड इवन जो सर्व कर रही हैं, इट कैन देयर ऑल ड्रेस्ड इन द ट्रेडिशनल यूक्रेनियन आउटफिट. ये यूक्रेन में एक स्पेशल हेयर बैंड होता है विद द फ्लावर्स, विच लुक्स वेरी प्रिटी. ये लोग सर में लगाते हैं. ये सोवियत स्टाइल हैट्स हैं. सो ये वो लेडीज़ हैं जो ट्रेडिशनल यूक्रेनियन गाउन्स में हैं और सर्व कर रही हैं. इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल लुकिंग रेस्टोरेंट एक्चुअली. ये मेट्रो स्टेशन का सिंबल है और यहाँ ये मैकडॉनल्ड्स है. ये मेन स्क्वायर है, केशाटिक स्ट्रीट पर. केशाटिक का मेट्रो स्टेशन है ये. This is a traditional Ukrainian instrument. ट्रेन में मैकडॉनल्ड्स है
मैकडोनल्ड्स में ये स्क्रीन्स लगे हुए हैं ऑटोमेटिक ऑर्डर करने के लिए और यहाँ पे कर सकते हैं। ये फूड एरिया बना हुआ है, ये वेट्रेस है और काउंटर। बिग मैक pretty much सेम प्राइस का ही है जो इंडिया में है, बल्कि आई थिंक थोड़ा सा सस्ता है इंडिया से यहाँ पर जो बिग मैक है। तो बिग मैक दिखा रहे हैं कि 67 का है। अब यहाँ पे दो प्राइसेस है, 112 और 67, तो आई डोंट नो कि उनमें अंतर क्या है। कि प्राइसेस को दो सिटीज़ में या दो कंट्रीज़ में कंपेयर करने के लिए बेस्ट तरीका इज़ लुकिंग एट द मैकडोनल्ड्स प्राइसेस। आई मीन इसको मैकडोनल्ड इंडेक्स भी बोलते हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी लाइक पॉपुलर तरीका है कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करने का। तो ओवरऑल कंपेरेबल है। इवन हाउसिंग कॉस्ट जो है, मैं कल किसी से बात कर रहा था तो मुझे बताया कि यहाँ पर आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है करीब $400 का, यानी करीब 28-30 हज़ार रुपये में आपको 2 BHK मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा बना हुआ, अच्छी जगह पे, काफ़ी मतलब मॉडर्न होगा, जो कि वेल इक्विप्ड एंड एवरीथिंग, फुली फर्निश्ड। और यूटिलिटीज़ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग यहाँ पर अलग होता है कई बार, और इंटरनेट वगैरह मिला करके करीब 5,000 उसके ऊपर ऑन एवरेज, मतलब 35,000 में आप आराम से 2 BHK यहाँ पर लेके ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड रह सकते हैं। उसके अलावा खाने के तो प्राइसेस अभी देख ही रहे हैं। मैंने एक मील अभी जो लिया था बताया, ट्रेडिशनल यूक्रेनियन रेस्टोरेंट में करीब टिपिकली 80 से 120 के बीच में डिशेस थी सभी, और यूजुअली लाइक 2 से 3 आपके लिए सफिशेंट होंगी डिपेंडिंग ऑन आप कितना खाना चाहते हैं वगैरह। तो आइडियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 में आप एक अच्छा मील खा सकें। 200 बहुत ज़्यादा हुआ तो 250 से ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल बी एबल टू स्पेंड, जो कि काफ़ी होता है मतलब एक मील के लिए। एज एन मील मुझे लगा कि बाहर रेस्टोरेंट में मील करना ही एक्सपेंसिव है, अदरवाइज़ रहना उतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट्स की कॉस्ट मैं बता ही रहा हूँ कम है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन टू होटल कॉस्ट ऑल्सो, इन टू हॉस्टल एंड अदर रियल एस्टेट थिंग्स। मेट्रो भी काफ़ी चीप है, तो बाकी सब चीज़ें चीप है। अगर आप सुपरमार्केट से लें तो इवन खाने का भी कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं करीब 100, 150, 200 इस रेंज में मिल जाते हैं आपको, 100 से 200 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ ले रहे हैं, कितना फैसिलिटीज़ है उसमें एंड एवरीथिंग। तो 100 से 200 मतलब करीब 300 से लेके 600 के बीच में आपको 500 पकड़ लीजिए, मतलब ऑन एवरेज आपको आराम से मिल जाएगा कोई भी हॉस्टल। अगर होटल लेना चाहें आप, प्रॉपर होटल रूम, तो वो भी आपको आराम से 2,000 रुपये तक का, 1.5 में भी मिल जाएगा, मतलब 2 में तो डेफिनेटली मिल जाएगा 2,000 में। एंड एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स भी प्रीटी मच कंपेरेबल हैं इन कॉस्ट, मतलब 1,500 से 2,000 के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा और स्पेशियस बड़ा अपार्टमेंट हो, मे बी 1 बेडरूम है वो या 2 बेडरूम है रादर देन स्टूडियो, तो मे बी वो 2,500 तक मिल जाए। बट इससे ज़्यादा यूजुअली आपको सही लोकेलिटी में अच्छा अपार्टमेंट इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर बहुत ज़्यादा पीक समर वाला टूरिस्ट सीज़न नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत ईजीली में मिल जाएगा। तो अगैन इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। योर पर डे एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट मैंडेट करती है 50 यूरोज़ अ डे, यू कैन आई थिंक ईजिली मैनेज इन 50 यूरोज़ अ डे। तो उससे कम में भी आप इजीली 20 यूरोज़ में भी कर सकते हैं अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो। ये है लाइट्स में एट नाइट कीव का एक छोटा सा दृश्य। ये एरिया मेन ट्रेन स्टेशन है वोक्जाल, जो ये सामने बिल्डिंग है, ये मेन ट्रेन स्टेशन है कीव का। यहाँ से इंटरसिटी ट्रेन चलती हैं। कोई बस स्टेशन भी है जहाँ पे अगेन इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। तो आपको यहाँ से कीव से किसी भी और सिटी में जाना है, उड़ीसा हो गया, लवीव हो गया, खारकीव हो गया, खारकीव पुरानी कैपिटल थी यहाँ की, तो फिर यहीं से ही आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा। करीब 500 ग्रीवीना से फेयर चालू हो जाता है ऑलमोस्ट किसी भी सिटी का। हर सिटी जो बाकी बिग सिटीज़ हैं कीव से 5-6 किलोमीटर की ड्राइव या ट्रेन या बस राइड जितनी दूर है, तो 500 से 1000 ग्रीवीना के बीच में आपको फेयर मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी लग्जूरियस राइड चाहिए। बसेस भी डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं और ट्रेन भी काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ टिकट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं।
ये ट्रेन स्टेशन है अंदर से, और यहीं पे टिकट्स मिल जाती हैं हालांकि, और यहाँ से ऊपर जाके ट्रेन बोर्ड होती है, बट आपको आने की ज़रूरत नहीं होती। इजीली ट्रेन की टिकट्स यूक्रेन में ऑनलाइन वेबसाइट है यूक्रेनियन रेलवेज़ की, इन इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यूजुअली ट्रेन्स आर रेडली अवेलेबल एंड ज़्यादा कंफर्टेबल एंड फास्ट हैं बसेस के कंपैरिजन में। प्राइस कंपैरेबल है बसेस से, तो बेटर है कि ट्रेन लिया जाए, स्पेशली अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो ओवरनाइट ट्रेन स्लीपर अवेलेबल है तो वो बेटर रहता है, यूजुअली ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है जर्नी। एंड डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल है, सीटर भी, फर्स्ट क्लास भी, सेकंड क्लास भी, तो अपनी बजट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं ट्रेन्स।